history, women pioneers have defied societal norms, carving their paths across various fields. They've inspired generations with landmark achievements. They've challenged the status quo and pushed the boundaries of possibilities. Welcome to Techno Phantom. We Flip 5G presents Women Pioneers of India in association with Republic TV, where we celebrate the spirit of womanhood and speak to some of India's brightest minds. Today we have with us a name that echoes in the field of hockey. Not only is she the former captain of the Indian women's hockey team, but also a beacon of unwavering determination. Let's take a look at Rani Rampal's incredible journey. From the land of Shahabad, Haryana, a young girl dared to dream differently. Meet Rani Rampal, the queen of hockey in India. Supported by her loving family, Rani's journey was marked by sacrifice, sweat, and a relentless pursuit of excellence. As the captain of the Indian women's hockey team, she not only led by example but ignited passion in her teammates. With a hockey stick in her hand and dreams in her heart, she defied norms and conquered stereotypes. On the international stage, she is a symbol of India's prowess in the world of hockey. Off the field, her heart is as big as her talent, reaching out to those in need and inspiring generations to chase their dreams. Rani, thank you so much for joining us on Techno Phantom. We Flip 5G presents Women Pioneers of India in association with Republic TV. Before we deep dive into this conversation, let's do a quick rapid fire round. So are you ready? Morning person or night owl? Morning person. Of course. Tea or coffee? Coffee. Coffee. Mountains or beaches? Beaches. One place you want to travel to? Italy. Italy. One thing on your bucket list outside of hockey? To travel the world. If not a hockey player, you would have been a? Just a normal girl and 20 साल में शादी हो जाती. That's all. One word to describe your playing style? Aggressive but calm also on the same time. Nice. Pre-game ritual that you swear by? Visualization. कि I play already one game in my mind before I go to the pitch to play the real game. And in your head you won that game? Yes. Brilliant. The toughest drill in your training routine? Shuttle runs. It's called suicide runs. So it's really Sounds tough. scary. Yes. Best piece of advice that you have ever received? Do the simple things right. So with that we are certainly starting the show on a very good note. रानी, सबसे पहले तो आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी कैसी रही? आप एक बहुत ही छोटे गांव से आती हैं हरियाणा में, बहुत कन्वेंशनल माइंडसेट था, बट आपने उन सभी बैरियर्स को ब्रेक करके आज आप रानी रामपाल बनी. कैसा रहा है ये सफ़र इन अ नटशेल? काफ़ी संघर्ष का था ये जर्नी जो था, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी अच्छा जर्नी भी रहा है, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में अच्छी मूवमेंट्स भी आई हैं, बहुत सारे लर्निंग्स भी रहे हैं लाइफ में. मुझे लगता है जो आज तक मेरे साथ हैं, जो लर्निंग मैंने बचपन में जो सीखा चीज़ें ना, स्पेशली मैं जिस बैकग्राउंड से आती थी, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो कार्ट पुलर थे, तो वो कभी फादर मदर दोनों बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं थे, तो उनको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ इतना पता भी नहीं था. एंड वो लोगों के लिए सोचते भी बहुत थे कि सब क्या बोलेंगे करके ना, और बोलते भी थे लोग उनको ना कि लड़की है, इसको क्यों खिला रहे हो, जब टी शर्ट डालेगी शॉर्ट्स डालेगी. तो पेरेंट्स को कन्विंस करना सबसे बड़ा चैलेंज था एक्चुअली मेरे लिए ना. बट धीरे धीरे अगेन वो फादर के दिल में हमेशा ना अपनी बेटी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है कहीं ना कहीं. उन्होंने मेरे लिए सबके साथ स्टैंड भी लिया कि ठीक है मेरी लड़की हॉकी खेलेगी. एंड मुझे भी काफ़ी टाइम लगा वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए. तो मेरे फादर जो थे, जैसे दिन में 80 रुपये कमाते थे, और वो भी कोई ऐसा नहीं था कि वो एवरी सिंगल डे कमा रहे हैं. कभी जब गए तो खड़े होकर पूरा दिन ऐसे ही आ गए शाम को, और वो 80 रुपये में आप सोचो कि पूरा 3 टाइम का फैमिली का खाना, जिसमें फैमिली में 7 मेंबर्स होते थे. ज़िंदगी में ना कभी हार नहीं माननी चाहिए, और आपकी स्थिति कैसी है ना वो हमेशा वैसी नहीं रहती, लेकिन
उसको बदलने के लिए आप क्या करते हो ना, वो बहुत मायने रखता है। जैसे हमारी एकेडमी ना बहुत डिसिप्लिन्ड एकेडमी थी कि जहाँ पे बच्चों को ना सुबह 5 बजे ग्राउंड आना है तो आना है, चाहे बारिश ठंड गर्मी कुछ भी हो। तो जब मैंने शुरू किया तो हमारे घर में कोई घड़ी नहीं होती थी, टू बी ऑनेस्ट। एंड मेरी मदर जो थी वो पूरी रात जो है बिना घड़ी के आसमान को देख के अंदाज़ा लगाना कि सुबह 4 बज जाएंगे तो उसको उठाना है। एंड मेरे से ज़्यादा उनको टेंशन रहती थी कि अगर वो लेट होगी तो उसको जाके मार पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगा। मैं 6th क्लास में थी तो हमारे स्कूल में एक राइटिंग कंपटीशन होता था। मुझे उसमें पता था कि उस कंपटीशन में जब भी कंपटीशन होता है तो आपको अलार्म क्लॉक मिलती है जो भी पर्सन जीतता है। तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई। मैंने उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस भी किया पहले ना। उसके बाद मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। देन मैं फर्स्ट आई उसमें कंपटीशन में ना। तो उस टाइम पे इतना छोटा सा अलार्म क्लॉक था, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। उस टाइम का मेरे लिए सबसे बड़ा मेडल एक तरह से वही था कि आपकी सुबह उठने की टेंशन सबसे दूर हो गई है। मैंने बचपन में एक बात सीखी थी हमेशा से ना कि आप किस फैमिली से आते हो, किस बैकग्राउंड से आते हो, आप अमीर हो या गरीब हो, वो डिसाइड नहीं करता कि आप क्या करोगे लाइफ में ना, लेकिन आपका एक जो जुनून है, आपकी मेहनत है, वो डिसाइड करता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। रानी, एक पॉइंट आया था आपकी लाइफ में जब आपको बैक इंजरी हुई थी। हाउ डिड यू रिवाइव योर सेल्फ दैट नो, आई विल फाइट दिस आउट एंड आई विल कम आउट ऑफ इट एंड आई विल प्ले हॉकी? वो सबसे टफेस्ट टाइम था एक्चुअली मेरे करियर का, आप पूछोगे तो, क्योंकि मेरा करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। जब मैं फर्स्ट टाइम जो है मैं जूनियर कैम्प में आई थी 2005 में आई थिंक, तो मेरा खुद का बॉडी वेट जो है वो 36 kg था एंड आई वाज वेरी वीक उस टाइम पे। बट एक शौक़ ज़रूर था कि हाँ मुझे लगता था कि हाइट वेट ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छी हॉकी खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम बोला गया कैम्प में कि आपको 80 kg वेट के साथ स्क्वाट्स करने हैं, जो मैंने कभी किए नहीं थे, एंड मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मेरे से नहीं होंगे क्योंकि मैंने कभी किए नहीं थे। एंड इतना वेट आपको देख के भी वो लगता है कि आप कैसे करोगे ना। देन मैंने ट्राई किया वो करने के लिए एंड वो वेट जो है मेरे ऊपर गिर गया था, जिससे मुझे बहुत बैडली बैक इंजरी हुई। एंड मुझे ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में कि मेरा करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया एंड मैं कभी ज़िंदगी में हॉकी नहीं खेल सकती दोबारा ना। जब आप बैठ नहीं पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, लेट नहीं पा रहे हो, तो आप भागने के लिए आप सोच भी नहीं सकते कि आप ग्राउंड में भाग भी सकते हो उस इंजरी के साथ ना। एंड स्पेशली जब आप ऐसी बैकग्राउंड से आते हो तो आपके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है कि आप कुछ अच्छा ट्रीटमेंट करा सको या कुछ भी ना। बट हाँ लेकिन मेरे कोच ने काफ़ी पुश किया मुझे। उन्होंने बोला कि तू डिसाइड कर ले कि तुझे हॉकी खेलना है या नहीं खेलना है करके ना, कि तेरा चॉइस है, तुझे खेलना है तो हम तुझे हेल्प करेंगे, उस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे, नहीं खेलना तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए ना। आई यूज़ टू क्राई एवरी सिंगल डे ना, कि ऐसा लगता था कि कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ ना। बट मुझे लगता है शायद उस चीज़ ने मुझे काफ़ी मेंटली टफ भी बनाया लाइफ में ना, कि अगेन की लाइफ में लड़ना सिखाया कि आपके पास कैसी भी सिचुएशन लड़ो। एंड उसके बाद मैं जब खेली ठीक होके वापस मैंने खेलना शुरू किया। देन मैं 2007 में नेशनल गेम्स खेली गुवाहाटी में। उसके बाद मैं सीधा सीनियर कैम्प में आई। सीनियर कैम्प में फर्स्ट कैम्प में आती मैं मैंने इंडिया में डेब्यू भी किया 14 साल की उम्र में। तो देन उससे मुझे जो है ना फिर लाइफ में और कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है अब लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, कि जितना काम अभी तक किया उससे ज़्यादा काम अभी करना पड़ेगा अगर और आगे तक जाना है हमें तो। यानी आपका वो जो आइकॉनिक शॉट था जो आपने जापान के अगेंस्ट लिया था, विच इज़ लाइक द मोस्ट टॉक्ड अबाउट शॉट, एंड दैट टुक इंडिया टू द ओलंपिक्स इन द क्वालिफायर्स. What was your state of mind at that time? In life pressure makes you. वो प्रेशर को आप हैंडल कैसे करते हो ना, एंड यू एक्सेप्ट इट कि प्रेशर तो रहेगा, बट यू एक्सेप्ट इट एंड यू जस्ट फोकस ऑन योर जॉब कि मेरा जॉब क्या है, मुझे कैसे करना है. अगेन आई बिलीव इन हैबिट्स, सीरियसली. जब मैं ट्रेन करती हूँ तो मैं अपनी हैबिट्स बना के ट्रेन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई शॉट मारना है ट्रेनिंग में, आई पुट प्रेशर ऑन माई सेल्फ विदाउट एनी डिफेंडर, कि मुझे पता गेम में मुझे उतना टाइम नहीं मिलेगा, उतना स्पेस नहीं मिलेगा मारने के लिए ना, बट मैं अपने ऊपर प्रेशर डाल के कैसे जल्दी शॉट मार सकती हूँ. सो आई बिलीव कि मैं उस हैबिट्स में बिलीव करती हूँ. एंड जब मैच में वो प्रेशर आया ना, सो मैंने एक सेकंड के लिए भी कुछ सोचा नहीं
कि मैं कैसे शॉट मारूं, क्या करूं, क्योंकि वो मेरी हैबिट थी जो मैं ट्रेनिंग में करती थी। एंड वो जब प्रेशर आता ना, योर हैबिट्स कम आउट। सो मैं ट्रेनिंग में बहुत बिलीव करती हूँ कि आप जैसा आप ट्रेनिंग में करते हो ना, वही आपके साथ मैच में होता है। मैच इज़ नॉट मैजिक कि आप कोई मैजिक पिल खाया तो मैच में कुछ डिफरेंट हो जाएगा। एंड वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव कि अगर आप शटल रन्स भाग रहे हो, अगर आप लाइन टच के वापस नहीं आ रहे, आप 2 मीटर से पहले विदाउट टच के आ रहे हो, फाइन, आप अपने आप के साथ चीट कर रहे हो, मे बी आपके कोचेस ट्रेनर्स आपको नहीं बोलेंगे, बट अगेन इन द मैच वो 2 सेंटीमीटर से आप जब गोल मिस करते हो ना एंड यू लूज द गेम, तब आपको समझ में आता है कि वो 2 सेंटीमीटर की क्या वैल्यू होती है, या आपने वो चीट अपने साथ ही किया था, किसी और के साथ नहीं किया। सो आई ट्रेन माई माइंड एंड बॉडी लाइक दैट। टोक्यो ओलंपिक्स काफ़ी मेमोरेबल रहा, मुझे लगता है इंडियन हॉकी के लिए बहुत मेमोरेबल रहा है। अगर वुमेंस हॉकी की बात करें तो आई थिंक जितनी क्लोजली लोगों ने वुमेंस हॉकी को इस ओलंपिक्स में फॉलो किया था, मैंने कभी अपने लास्ट 22 साल के करियर में कभी नहीं देखा कि वुमेंस हॉकी को कभी लोगों ने इतनी क्लोजली फॉलो किया। लेकिन वो जर्नी इतना ईजी नहीं था। आपकी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इनक्रेडिबल थी एंड इट बैक्ड इंडिया द 4th place इन द फिनिश। अगेन a very high pressure moment and you've spoken about it, but what was it during that time? कोविड का टाइम था, ओलंपिक से पहले सबके लिए बहुत टफ टाइम था, क्योंकि सबको पता है सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। इससे पहले किसी ने कोविड का एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो वो सब चीज़ों ने, कोविड ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया उस टाइम पे ना। एंड वो सब चीज़ें मुझे लगता है टोक्यो ओलंपिक्स में भी हमें हेल्प की कि कैसे हम ये सब चीज़ों को ओवरकम करके आए हैं। एंड सब लोगों की हमसे एक होप है, लोगों को लाइफ में कुछ खुशी चाहिए, क्योंकि किसी की लाइफ में उस टाइम खुशी नहीं थी, कोविड के उससे सब डिस्टर्ब थे। तो हमें लगा कि हम टोक्यो ओलंपिक्स में आए हैं तो सब लोग हैं हमारे ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हैं, जस्ट अपना बेस्ट तो दें, उसके बाद क्या रिजल्ट होगा देखेंगे। एंड वी लोस्ट फर्स्ट 3 गेम्स, जिस सबकी उम्मीदें ख़त्म होगी कि अब तो हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। बट अगेन जब हम ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे तो काफ़ी लोगों ने देखा मैच एंड 1-0 से जीते। देन तो कंट्री में एक वो आ गया कि इंडिया ने वुमेंस टीम ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बीट किया है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग इवन हम फ़ोन भी नहीं चलाते थे ओलंपिक्स में ना, क्योंकि हमें ये था कि हमें फोकस्ड रहना वहाँ पे ना, हमारे पास फ़ोन्स नहीं होते थे, बंद रहते थे। बट जब इंडिया वापस आए तब हमें ये सब चीज़ें पता चली सुनने को ना, कि ऑलमोस्ट पूरी कंट्री जो है वो सेमीफाइनल इंडिया का देख रही थी। एंड आई एम लाइक कि यस, हमने मेडल ऑलवेज गुड, की ब्रॉन्ज आता तो एक हिस्ट्री होती, बट एटलीस्ट हमने उन सब लड़कियों को तो इंस्पायर किया कि जो लड़कियां एक सपना देखना चाहती हैं, हॉकी खेलना चाहती हैं, जैसे हमें किसी ने इंस्पायर किया तो इसलिए हमारी भी जॉब है कि हम और बच्चों को इंस्पायर करें, ताकि वो लड़कियां भी सपना देख सकें, ताकि हो सकता है जिन्होंने आज शुरू किया टोक्यो ओलंपिक्स देख के, वो 10-15 साल बाद दे आर इन द ओलंपिक पोडियम, यू नेवर नो। In a world dominated by men, one woman rewrote history on the tracks. Meet Surekha Shankar Yadav, India's first female trained driver. Through countless challenges, she carved her own path. She also piloted the iconic Vande Bharat Express from Maharashtra's Solapur to Chhatrapati Shivaji Maharaja terminus earlier this year. Her journey reminds us that with passion and perseverance, we can overcome any obstacle. Thank you so much for staying tuned. You're watching Techno Phantom VFlip 5G presents Women Pioneers of India in association with Republic TV. We are in conversation with none other than Rani Rampal. रानी, चलिए आगे बढ़ाते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। रानी, आपने इतने कोवेटेड अवार्ड्स जीते हैं, बेस्ट प्लेयर इन द जूनियर वर्ल्ड कप इन 2013, फर्स्ट वुमन हॉकी प्लेयर टू हैव वन द खेल रत्न अवार्ड, of course the Padma Shri, and what the feeling must have been like to have been receiving it, the first woman hockey player to have a whole stadium named after her. मतलब the more I talk the less it is. एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था आपका जिसकी हेडलाइन थी रानी द क्वीन ऑफ हॉकी। आई थिंक इट्स एप्ट फॉर यू। आई डोंट नो कहाँ से शुरू करूँ एक्चुअली ना। यस, आई एम रियली ब्लेस्ड कि एंड इट्स माय ऑनर कि मुझे मैं कंट्री की फर्स्ट फीमेल हॉकी प्लेयर बनी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो स्पोर्ट का एक हाईएस्ट ऑनर होता है
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसके साथ मुझे सम्मान दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एंड मुझे लगता है कि ये जो खेल रत्न अवार्ड है ये वुमेंस हॉकी के लिए बहुत बड़ी रिकॉग्नाइजेशन है, बिकॉज वुमेन हॉकी प्लेयर कभी सोच नहीं सकता था पहले कि उसको भी कभी कंट्री का इतना हाईएस्ट ऑनर मिल सकता है। लेकिन जब आपकी गेम को रिकॉग्नाइज किया जाता है देन मुझे लगता है उससे बहुत सारी लड़कियां और भी जो है वो इंस्पायर होती हैं कि शायद ये चीज़ कभी हम भी कर सकते हैं। कहाँ से एक लड़की 7 साल की उम्र में हॉकी शुरू करके ऐसी बैकग्राउंड से शुरू करके ऐसी जगह से शुरू करके कभी सोच भी नहीं सकते कि आपको कभी एक दिन जो है वो कंट्री का 4th सिविलियन जो अवार्ड है वो मिलेगा, पद्मश्री। एंड मुझे लगता है कि मेरे लिए लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि पद्मश्री मुझे जो है मेरे फादर साहब मेरे साथ गए थे, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी है, मेरी जर्नी में सपोर्ट भी किया है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आई डोंट नो उनको पता था या क्या था, लेकिन जब वो उनसे मिले तो उन्होंने उनको बोला हाथ पकड़ के ना कि आपकी बेटी से ज़्यादा गर्व हमें आपके ऊपर है, क्योंकि आपने उस टाइम पे लड़की को खेलने दिया जब कोई लड़कियों के लिए सोचता नहीं था। तो एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि हर किसी सिटीजन का एक सपना होता है अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलना, और वो मिले और उन्होंने इतनी बड़ी बात उनको बोली। एंड 2013 को जो जूनियर वर्ल्ड कप था उसकी मैं बेस्ट प्लेयर बनी, बट मुझे लगता है कि वहाँ से मेरी लाइफ का शायद एक टर्निंग पॉइंट था कि जूनियर वर्ल्ड कप में हमने फर्स्ट टाइम जो इंडिया ने हिस्टोरिक ब्रॉन्ज जीता था। आज से पहले कभी जूनियर वर्ल्ड कप में हमारा मेडल नहीं आया था, और उसमें आप अगर बेस्ट प्लेयर निकल रहे हो टूर्नामेंट के विद ब्रॉन्ज मेडल, तो इससे बड़ा और क्या लाइफ में ना आपकी, स्पेशली जब आप इतनी यंग एज में हो। आई वॉज लाइक कितना 16 ईयर्स ओल्ड, तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन कॉन्फिडेंस आपको और कहाँ से आ सकता है। लाइफ में जो भी अप एंड डाउन आया उस चीज़ ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, एंड वो चीज़ें सीख के आज भी वो चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं। एंड आई ऑलवेज़ थैंकफुल टू पीपल जिन्होंने मुझे वो चैलेंज दिया या जिन्होंने बोला मैं नहीं कर सकती थी। आई नो कि ठीक है अभी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम फेस कर सकते हैं। रानी, टेक्नो की बात हो ही रही है तो आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी आप कितनी टेक savvy हैं? आजकल की लाइफ की डिमांड एक्चुअली बहुत टेक्नो की हो चुकी है कि हर चीज़ आप फ़ोन पे करते हो, कुछ भी होता है फ़ोन पे आप करना चाहते हो। इवन स्पोर्ट्स में भी जो स्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी स्पोर्ट हो गया। हर चीज़ में ना टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ होता है। जैसे हमारा स्पोर्ट है कि उसमें वीडियो एनालाइजिंग बहुत होती है। अब आपने जो ट्रेनिंग किया, मैचेस खेला, आप उसको कैसे एनालाइज कर सकते हो, या बहुत सारा डाटा होता है प्लेयर्स का ना कि उनका वेलनेस हो गया, उनका सोरनेस हो गया, एवरीथिंग सब कुछ टेक्नोलॉजी जो है स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। एंड यस, आई ऑल्सो ट्राई कि टाइम के साथ साथ हम भी अपने आप को अपडेट रखें एंड जितना ज़्यादा हो सकता है टेक्नोलॉजी का यूज़ करें बेस्ट वे में। लाइफ के इस स्टेज पर पहुंचकर आपका यूथ के लिए क्या मैसेज है, एंड हाउ वुड यू एडवाइज देम टू डील विद द टफ सिचुएशंस इन लाइफ पॉजिटिवली? मेरा सभी यूथ को स्पेशल लड़कियों का यही मैसेज है कि लाइफ में ना एक विज़न होना चाहिए, आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। जब आपका वो क्लियर हो जाता है आपके लिए काम करना बहुत इजी हो जाता है कि आपको पता होता है इसके लिए मुझे ये अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन आपका विज़न नहीं है, आप जस्ट मेहनत तो कर रहे हो बट किस लिए कर रहे हो आपको नहीं पता। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद में बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं रखोगे मैं ये कर सकती हूँ, तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। बिकॉज स्टार्टिंग में तो 100 लोग आपको यही बोलेंगे कि ये नहीं कर सकती, लेकिन यू आर द ओनली वन, आप अकेले वो जो अपने आप को बोलोगे कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मुझे करना है। और जब आप वो चीज़ अपने दिमाग में रखते हो आप बहुत सारी चीज़ें जो अचीव कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है दुनिया की हर लड़की कर सकती है, क्योंकि मैंने अपने आप पे विश्वास रखा, अपने काम पे विश्वास रखा। एंड जिस काम को आप कर रहे हो उसमें अपना बॉडी, माइंड, दिल सब उसमें डालो, करो, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। आपकी वो प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में ना। थोड़े कुछ सालों के लिए भूल जाओ कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोलेंगे, सिर्फ आपका काम आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड
जो लोग आपके लिए हमेशा बैड बोलते हैं ना, वही लोग सबसे पहले आके आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जब आप लाइफ में कुछ करते हो। तो मेरा सबको ये कि अपनी ज़िंदगी की लड़ाई में लड़ना सीखिए। लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैलेंज कभी बंद नहीं होते, तो हमें भी फ़ाइट करना बंद नहीं करना कभी लाइफ में ना, फ़ाइट करते रहना चाहिए। डिफरेंट फेस में डिफरेंट चैलेंज होता है, लेकिन कभी गिव अप मत करो लाइफ में ना। मैं अभी जैसे बच्चों को कोचिंग भी करती हूँ, लड़कियों को ना, मेरा उन सबको भी यही एडवाइस रहता है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता आप किस फैमिली से आ रहे हो, किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। मेरे लिए मैटर करता है कि आपका डेडिकेशन ग्राउंड में कितना है, आप कितने फोकस, आपकी लाइफ में आप कितना करना चाहते हो, आपके अंदर कितनी भूख है करने की ना, कि हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। एंड मैं आप सबको सेम सिखाऊंगी, लेकिन आपका पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल एफर्ट डिसाइड करेगा कि आप आज यहाँ से कहाँ जाओगे। तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ आ सकती हूँ, तो वो सब लड़कियाँ भी आ सकती हैं। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना उनको लाइफ में कि उनको मोटिवेट किया जाए, कि उनको एक विज़न दिखाया जाए और उनमें वो बिलीव जो है वो क्रिएट किया जाए कि तुम सब कर सकते हो, बस तुम्हें अपने आप में ना वो करने की ज़रूरत है कि हम करेंगे और कर सकते हैं। वो बिलीव दिलाना उनको बहुत ज़रूरी है। बहुत ही मज़ा आया रानी आज आपसे बात करके, एंड देयर इज़ जस्ट सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, एज आई थिंक यू विल ऑलवेज कंटिन्यू टू इंस्पायर एवरी young girl watching you. On that note, let's take a quick selfie. Let Rani's story be an example of how determination and resilience can fuel the pursuit of passion and pave the paths for millions. On that note, as we say goodbye with the promise that we'll be back with another interesting story in the next episode, you do stay tuned to Techno Phantom V-Flip 5G presents Women Pioneers of India in association with Republic TV. Thank you for watching. 2013 को जो जूनियर वर्ल्ड कप था, उसकी मैं बेस्ट प्लेयर बनी, बट मुझे लगता है कि वहाँ से मेरी लाइफ का शायद एक टर्निंग पॉइंट था कि जूनियर वर्ल्ड कप में हमने फर्स्ट टाइम जो इंडिया ने हिस्टोरिक ब्रॉन्ज जीता था। आज से पहले कभी जूनियर वर्ल्ड कप में हमारा मेडल नहीं आया था, और उसमें आप अगर बेस्ट प्लेयर निकल रहे हो टूर्नामेंट के विद ब्रॉन्ज मेडल, तो इससे बड़ा और क्या लाइफ में ना आपकी, स्पेशली जब आप इतनी यंग एज में हो। आई वॉज लाइक कितना 16 ईयर्स ओल्ड, तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस आपको और कहाँ से आ सकता है।